Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are going to do one more part of the chapter, that is regional aspirations. In last class we have understood the situation of the Punjab especially. We have understood what was the scenario of the Punjab, right? We have also understood the situation of the Kashmir, right? So fine, what was the situation of the Punjab especially? We have understood the violence was started. And initially the Akali Dal, right, which was fighting for the rights of Punjabi people, that has what the group has done, that has worked for the demands, that has worked for the more, you can say that the federalism should work in the favor of the states. That was the basic demand. After that, they have also launched a movement, right, regarding the water disputes between Punjab and the neighboring states. Right, but government was not taking that kind of actions, that was not showing any kind of initiatives to solve the problems of the Sikhs, right? So now what will be the situation of the country? Of course the situation is going to be worse and all of the scenario is going to be violent. Now how the violence is going to take place and what kind of situation will be there in the country, that we are going to discuss today. So let us have a look. That is cycle of violence. Now what is the cycle of violence and how the violence of the Punjab that will create a problem over the politics of the whole country. What will be the scenario of all of the nation? That all things we are going to discuss in today's class. Okay, what will be the scenario of all of the nation? So first is mentioned, that is cycle of violence. What was the cycle of violence? Firstly, it is mentioned, soon the leadership of the movement passed from the moderate Akalis to the extremist elements and took the form of armed insurgency. अब देखो क्या हुआ, जो मॉडरेट अकालीस थे ना, अब वो लोग क्या बन गए, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स. अब ये टू वर्ड्स आप लोगों ने ना कभी मतलब लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे. एक होता है मॉडरेट, एक होता है एक्सट्रीमिस्ट. मॉडरेट क्या होते हैं? मॉडरेट आर दोज पीपल हु आर बिलीविंग दैट यस, we will have to give some kind of letter, some kind of applications to the government, right? And so the government can take actions on behalf of that, right? matlab we will have to do, you can say we will have to request to the government that please do this for us. लेकिन extremist कौन से? extremist बोलते हैं no, government is not able to listen it, right? because government understands the language of violence only. वो होते हैं extremist. मतलब तोड़ फोड़ करो, कुछ भी करो, right? आप लोगों ने हमारी कंट्री में भी लाल बाल पाल का नेम सुना होगा ना, राइट? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, राइट? सुना होगा आप लोगों ने. तो वो क्या थे? दीज पीपल वर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. क्यों? क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि नहीं भाई, लेटर वगैरह तो लिख के बहुत देख लिया हम लोगों ने, अब तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट हमारी बातों को नहीं सुन रही तो देयर इज वन मेथड ओनली एंड दैट इज द वायलेंस, जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट को सुना सकते हैं, राइट? तो फाइनली क्या होगा, जो मूवमेंट चल रहे थे, जो डिमांड्स चल रही थी पंजाब में, वो मॉडरेट अकालीस टू एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट में वो शिफ्ट हो गई, चेंज हो गई. और वहां पे क्या होना शुरू हो गया, आर्म्ड इंसर्जेंसी, मतलब हथियारों के साथ विद्रोह, इंसर्जेंसी शुरू हो गई, राइट? मतलब गवर्नमेंट वाज नॉट एक्सेप्टिंग देयर डिमांड्स, तो पीपल सेड दैट वी आर नॉट हैविंग एनी अदर अल्टरनेटिव एंड वी विल हैव टू डू इट. फाइनली क्या हुआ, दीज मिलिटेंट्स मेड देयर हेडक्वार्टर्स इनसाइड द सिख होली श्राइन. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां से अराइज होती है कि जो भी मिलिटेंट्स थे, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वॉयलेंटिक एस्पेक्ट्स यूज करने वाले पीपल थे, उन्होंने क्या किया, दे थॉट कि हाउ कैन दे गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल. अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने शेल्टर कहां पे ले लिया, हेडक्वार्टर कहां पे बना दिए, गोल्डन टेम्पल में. और जो क्या था, सबसे बड़ा एक टाइप से सिखों के लिए सबसे पवित्र प्लेस वही है ना, सबसे हॉली प्लेस वही है, राइट? गोल्डन टेम्पल. एंड टर्न इट इनटू द आर्म्ड फोर्ट्रेस. और इसको किस में बदल दिया, एक ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस जहां लोग आ रहे हैं, सिखों के लिए सबसे प्योर प्लेस है, उस प्लेस को उन लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे हथियार रखे जा रहे. वो सिचुएशन हो गई थी कंट्री की, समझा? मतलब देखो पहले क्या पोजीशन थी, दे वर यूजिंग मॉडरेट पाथ्स, बट व्हेन द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव देन दे टर्न टू एक्सट्रीमिस्ट. फाइनली क्या कर दिया उन लोगों ने, फाइनली लोगों ने क्या किया, अपने हेडक्वार्टर कहां पर बना दिए, गोल्डन टेम्पल में बना दिया, राइट? और वहां पर क्या बना दिया, जो एक ऐसा प्लेस है जहां पर लोग पीस गेन करने आते हैं, वो किसके लिए बन गया, अब वो वायलेंस के लिए आर्म्स रखने वाला शेल्टर बन गया, राइट?
अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन द डेंजर, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंट्री में रिलीजियस बेसिस पे बहुत ज्यादा वायलेंस हो चुकी थी. सो गवर्नमेंट विल हैव टू टेक दैट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स ना, कि अब उन चीजों को कैसे ना कैसे करके स्टॉप किया जाए, क्योंकि भाई सबको पता था कि रिलीजन के नाम पे क्या हो रहा है, एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स वहां पे एंटर कर लें. और आप लोगों ने पढ़ा भी था ना कि इन लोगों को सपोर्ट कौन दे रहा था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो सपोर्टिंग. कहीं भी जब हमारी कंट्री में ना ऐसे मूवमेंट चलते हैं और स्पेशली बॉर्डर एरिया पे, तो पाकिस्तान विल डेफिनेटली हेल्प दोस पीपल्स, राइट. तो यहां पर फिर क्या हुआ, फाइनली जून 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट ऑपरेशन ब्लू स्टार. अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, इन मिलिटेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, इनको कैच करने के लिए, होल्ड करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया. आप लोगों ने सुना होगा ना, ऑपरेशन चलते हैं हमारे मिलिट्री का ऑपरेशन. ये वो वाला ऑपरेशन नहीं जो इंसानों का होता है, मिलिट्री के ऑपरेशन होते हैं, है ना, मतलब किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए. और ये यहाँ तो पूरा का पूरा एक ग्रुप बन गया ऐसे लोगों का, राइट. तो उन लोगों को कैप्चर करने के लिए, होल्ड करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा, राइट. एंड दिस वाज दी व्हाट वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जब अकाली दल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा था, जब वो सिख कम्युनिटी किस में कन्वर्ट होगी, एक्सट्रीमिस्ट फेज में चले गए, और जब उन्होंने गोल्डन टेम्पल को क्या बना दिया, हेड क्वार्टर बना दिया, राइट. किस किस चीज का, कि आर्म्ड फोर्ट्रेस, उसको आर्म्ड फोर्ट्रेस में उसको कन्वर्ट कर दिया. तो नाउ इट वाज द आर्मी एक्शन ऑफ द कंट्री, राइट. गॉट इट. सो दैट वाज द ऑपरेशन ब्लू स्टार. अब देखो क्या हुआ, इन दिस ऑपरेशन द गवर्नमेंट कुड सक्सेसफुली फ्लश आउट द मिलिटेंट्स. मतलब गवर्नमेंट जो चाहती थी वो हो गया, मिलिटेंट्स को फ्लश आउट कर लिया गया, उनको फाइंड आउट कर लिया गया, मतलब पकड़ लिया गया, होल्ड कर लिया गया. बट इट वाज डैमेज द हिस्टोरिक टेम्पल. It also damaged the historic temple and deeply hurt the sentiments of the Sikh. लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम हुई ना, वो प्रॉब्लम क्या हुई सबसे बड़ी, इसकी प्रॉब्लम ये हुई कि इसने जो सिखों का सबसे प्योर प्लेस है ना, उसको डैमेज कर दिया. क्योंकि देखो, अगर गोल्डन टेम्पल अगर हर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली क्या हुआ, इसकी वजह से क्या होना शुरू हो गया, इसकी वजह से गोल्डन टेम्पल जो स्पिरिचुअल प्लेस है सिखों के लिए, वो डैमेज हो गया. और जैसे ही वो डैमेज हुआ, तो अब जो कॉमन सिख पीपल, उनके माइंड में क्या जाएगा, गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव्स, राइट. तो उन लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं हर्ट होना शुरू हो गए. गेटिंग माई पॉइंट. क्योंकि लोगों को क्या लग रहा था, दैट वी आर द सॉफ्ट टारगेट्स ओनली. So a large proportion of Sikhs in India and abroad saw the military operation as the attack on their faith, and this gave further impetus to militants and extremist groups. और अब देखो, जब कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है ना, तो लोगों के माइंड में हमेशा नेगेटिव चीजें ही जाती हैं. और यहां पर भी वही हैपन हुआ. क्या हैपन हुआ कि जो लोग थे जो इंडिया में रह रहे थे, स्पेशली सिख कम्युनिटी, और चाहे वो अब्रॉड में भी रह रहे थे, अब देखो जब सिख टेम्पल जो गोल्डन टेम्पल है उसको इतना ज्यादा एक टाइप से डैमेज फेस करना पड़ा, लोगों को मतलब कहीं ना कहीं वायलेंस भी टॉलरेट करनी पड़ी. तो जो सिख कम्युनिटी है ना, चाहे वो हमारी कंट्री में रह रहे थे, चाहे वो अब्रॉड में रह रहे थे, उन लोगों ने क्या फील किया कि जो अटैक है ना, दिस वाज नॉट ओनली ऑन द गोल्डन टेम्पल, बट उन्होंने क्या फील करना शुरू किया कि ये अटैक किसके ऊपर है, ये उनके फेथ के ऊपर, उनके ट्रस्ट के ऊपर, उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स के ऊपर है. और इसने क्या कर दिया, फाइनली मिलिटेंट्स को फर्दर एक टाइप से पाथ प्रोवाइड करवा दिया. उन लोगों ने अब इसी चीज को बेस बनाया कि नहीं, गवर्नमेंट तो हमारे रिलीजियस जो कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उनके ऊपर अटैक कर रही है. गवर्नमेंट ने तो टारगेट बनाना शुरू कर दिया सिखों को. अब ऐसी ऐसी चीजें लोगों के माइंड्स में भरनी शुरू कर दी. और ऑफ कोर्स जब सिख कम्युनिटी के लोग इन बातों को सुनेंगे, तो नॉट ओनली इन द नेशनल स्केल ऑल्सो, बट ऑन इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो, those people, those Sikh community who were living in the abroad, they were also in the favor of Sikh community, अकाली दल स्पेशली. समझ आया, मतलब ऐसे लोग जो इस वायलेंस को भड़का रहे थे, अब एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट्स, अब वो तो इसको क्या कर रहे थे, they were using it as a weapon. समझ आया. और लोगों का ट्रस्ट ऑफ कोर्स they were able to gain, राइट. अब देखो फिर क्या हुआ, स्टिल मोर ट्रैजिक टर्न ऑफ इवेंट्स कॉम्प्लिकेटेड द पंजाब प्रॉब्लम फर्दर. अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, अब जब लोगों के दिमाग में ये आया कि दैट हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस सिचुएशन, देन देयर वाज वन नेम ओनली, दैट वाज शी इंदिरा गांधी. क्योंकि लोगों ने तो आज देखो हमारी कंट्री में कुछ भी गलत हो रहा है, वी आर ब्लेमिंग मिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर व्हाट, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग आवर नेशन. तो द सेम सिनेरियो वाज हैपनिंग हियर आल्सो ना. जब अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो लोग किसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, शी वाज इंदिरा गांधी ओनली,
राइट और उसके अलावा क्या हुआ कि जो सिचुएशन थी दैट वाज अगेंस्ट द रिलीजियस थिंग्स ओनली। तो अब इसलिए क्या हुआ, रिलीजियस बेसिस पे जो सिख कम्युनिटी उनके माइंड में तो पूरा अग्रेशन भर गया। राइट, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज assassinated on 31st of October 1984 outside her residence by her own bodyguards। और बिकॉज जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, और हालांकि ये बहुत टाइम के बाद जाके पता चलेगा कि उनके बॉडीगार्ड्स ने उनको मारा है। राइट, मतलब अनआइडेंटिफाइड पीपल उनको किल करेंगे, स्टार्टिंग में तो ऐसा ही फील होगा, उनको असैसिनेट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सिचुएशन और ज्यादा ट्रेजिक कब बन गई, और ज्यादा उसमें एक टाइप से ऐसा मोड आ गया, टर्न आ गया कि अब वायलेंस और ज्यादा भड़केगी। क्योंकि क्या हुआ, जब सिखों के साथ ये सब हो रहा था उसी टाइम पे असैसिनेशन हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट वाज इंदिरा गांधी। अब ये चीज लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्राइक होगी कि फॉर व्हाट दिस ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि सिखों के साथ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो रही है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार दैट वाज लेड बाय इंदिरा गांधी ओनली, मतलब उन्हीं की गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे चला ना, तो मतलब गवर्नमेंट की कंसेंट थी। तो लोगों के माइंड में क्या आया कि क्योंकि इंदिरा गांधी ने वो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया है अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच क्लियर इन द माइंड ऑफ द पीपल दैट यस ओनली सिख पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। समझ आ, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब यहां से सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई, क्योंकि उन्हीं के, हालांकि देखो यहां पर क्या लिखा है, बाय हर ओन बॉडीगार्ड्स, और उनके बॉडीगार्ड्स, अब देखो क्यों, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड दे वर आल्सो सिख, और उन्होंने क्या फील किया कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को गवर्नमेंट ने हर्ट किया है, इसीलिए उन लोगों ने असैसिनेट कर दिया। सो बोथ द assassins वर a Sikh and they wanted to take revenge from ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्यों चाह रहे थे ऐसा, क्योंकि जो असैसिनेट करने वाले थे, बाद में पता चलेगा सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, है ना, तो अब वो लोग कहते दे आर आल्सो द सिख, और वो क्या चाह रहे थे कि जैसे उनके लीडर्स को मारा गया है वैसे ही गवर्नमेंट के लीडर को भी मार दिया जाए, क्योंकि वो क्या चाह रहे थे, गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल, तो इसीलिए गवर्नमेंट के साथ बदला ले लिया जाए। राइट, so while the entire country was shocked by this development in Delhi and in many parts of the northern India, violence broke out against the Sikh community। अब देखो लोगों को क्या लगेगा कि अब जो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज चल रही थी ना कंट्री में, एक पीस को खराब करने वाली, अब फाइनली लोगों के माइंड में क्या जाएगा, अब फाइनली लोगों के माइंड में यही जाएगा कि सिख पर्सन है ना, दीज आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली सिखों के अगेंस्ट में पूरी की पूरी कंट्री में वायलेंस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब लोग डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि सिख कम्युनिटी है जो इन सारी की सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो, पूरी की पूरी कंट्री ने सिखों के अगेंस्ट वायलेंस करनी शुरू कर दी। राइट, अब देखो ये पर्सन यहां साइड में आपको गिवन है, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, ये कौन थे। अब देखो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हो जाएगा, तो फाइनली द गवर्नमेंट विल बी चेंज्ड अगेन, क्योंकि असैसिनेशन हो गया, अभी प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हुआ, छोटी बात तो नहीं है। राइट, तो फिर दोबारा से इलेक्शंस हो जाएंगे, तो उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मिस्टर राजीव गांधी, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अब देखो कितना भी बड़ा लॉस हो जाता है ना, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बट बाद में हमेशा क्या करना पड़ता है, नेगोशिएशंस करनी पड़ती हैं। राइट, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब इतना डिस्ट्रक्शन हो गया, तो उसके बाद भी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी। क्यों, क्योंकि फाइनली हमें पता है कि चाहे कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, बट फाइनली वी विल हैव टू डू नेगोशिएशंस ओनली। तो ये वही पर्सन है जो नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व होंगे, जो सिख कम्युनिटी की तरफ से नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करेंगे इन फ्रंट ऑफ मिस्टर राजीव गांधी। राइट, अब देखो ये कौन है, सिख पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर, बिगिन हिज पॉलिटिकल करियर इन द मिड 60s एट अकाली लीडर, अकाली पार्टी के लीडर थे, बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल इन 1980, मतलब जहां से वो लोग बहुत ज्यादा डिमांड करे, क्योंकि देखो यहां से क्या करना शुरू करते थे, उन्होंने मूवमेंट चलाना शुरू किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के रिगार्डिंग, तो उसी टाइम पे प्रेसिडेंट थे अकाली दल के, एंड रीच्ड एन एग्रीमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ऑन की डिमांड्स ऑफ अकालीज। और राजीव गांधी के साथ इन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट किया, किसके रिगार्डिंग, कि अब क्या क्या होना चाहिए। राइट, जो अकालीज की डिमांड थी उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक टाइप से नेगोशिएशंस की थी मिस्टर राजीव गांधी के साथ। उसके बाद असैसिनेटेड बाय अनआइडेंटिफाइड सिख यूथ, और क्यों हो रही थी वो सारी की सारी चीजें, क्योंकि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था। राइट, तो उसके बाद कंट्री में पीस कैसे मेंटेन होगी, वो सारी की सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड बाय दीज 2 लीडर्स, राइट, फ्रॉम होल ऑफ द कंट्री, दैट वाज मिस्टर राजीव गांधी, एंड दैट पर्सन हु वाज रिप्रेजेंटिंग द अकाली दल, द सिख कम्युनिटी, दैट वाज मिस्टर लोंगोवाल।
राइट। अब देखो फिर क्या होगा, यहाँ इसको साइकिल ऑफ वायलेंस क्यों लिखा है, क्योंकि अब क्या हो गया, पूरी की पूरी कंट्री में सिचुएशन ऐसी है कि सिखों के अगेंस्ट में वायलेंस शुरू हो गई। राइट। अब यहां पे देखो कैसे हुई, द वायलेंस अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी। अब देखो यहां पे सारी की सारी सरेंडर एट गोल्डन टेम्पल, ये सारी की सारी चीजें लिखी हैं। 250 टेररिस्ट, ये आपको किसकी चीजें दिखाई गई हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑल दीज थिंग्स, इसकी चीजें आपको दिखाई गई हैं। राइट। मतलब हरमिंदर साहिब वही गोल्डन टेम्पल, नॉट डैमेज कॉज टू, यहां पर गवर्नमेंट ने लिखवाया कि हरमिंदर साहिब को कोई लॉस नहीं मिला है, डैमेज नहीं हुआ है, बट एक्चुअली डैमेज हुई थी सारी की सारी चीजें। और जो सबसे बड़ा लॉस था वो था रिलीजियस सेंटिमेंट्स का लॉस, उसका डैमेज हो जाना। राइट। अब ये जो वायलेंस थी 1 वीक से भी ज्यादा कंटिन्यूसली, मतलब 1 वीक तक ऑलमोस्ट चलती रही, और 1 वीक में सोचो कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। राइट। सो मोर देन 2000 सिख वर किल्ड इन द नेशनल कैपिटल, और क्या किया, नेशनल कैपिटल में ही 2000 लोगों को मार दिया। तो अब सोच के देख सकते हो कि कंट्री की कैपिटल की सिचुएशन कैसी होगी उस टाइम पे। राइट। अब देखो आपको याद आ रहा होगा वो वाला सीन जब हम लोगों ने पार्टीशन पढ़ा था कि ऑलरेडी लोगों ने एक दूसरे को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। हिंदूज को मुस्लिम फंसे तो उन्होंने मुस्लिम्स को मार दिया, मुस्लिम्स को हिंदू फंस गए तो उन्होंने हिंदूज को मार दिया। द सेम सिचुएशन वॉज हैपनिंग हियर ऑल्सो। अब सिखों को हमारी मतलब जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज है वो क्या करेंगे, सिखों को मारना शुरू कर देंगे। अब सिख भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो भी वायलेंस पर उतर आएंगे। तो मतलब पूरी की पूरी कंट्री वही सिचुएशन हम लोग दोबारा से फेस कर रहे थे जिससे हम लोगों ने शुरुआत की थी हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री की। राइट। द एरिया वॉज अफेक्टेड बाय द वायलेंस, जो कैपिटल सिटी थी दैट वाज द एरिया व्हिच वाज अफेक्टेड मोस्ट बाय द वायलेंस। हंड्रेड्स ऑफ द सिख्स वर किल्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कैपिटल सिटी में 2000 और दूसरे पार्ट्स में भी हंड्रेड्स ऑफ द सिख को मार दिया गया। स्पेशली इन प्लेसेस लाइक कानपुर, बोकारो एंड चास, इन प्लेसेस पे वायलेंस और ज्यादा कहीं ना कहीं ड्रास्टिक थी और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। Many Sikh families lost their male members and thus suffered great emotional and heavy financial loss. और क्या हुआ देखो, जो उस टाइम तक हमारी कंट्री की सिचुएशन, इट इज द टॉक ऑफ 1984 ओनली, तो वहां तक क्या था, although we are having patriarchal mindset today also, but that time what will be the scenario कि of course male members will be dominating. लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है कि यहाँ पे टारगेट्स किसको किया जा रहा है, टारगेट्स फॉर मेल मेंबर्स। क्योंकि क्या हो रही थी सिचुएशन कि अगर मेल मेंबर को मार दिया जाएगा तो क्या होगा, फीमेल्स विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। समझ आया। और दूसरा क्या होगा, क्योंकि मूवमेंट को लीड कौन कर रहे थे, द मूवमेंट वाज लेड बाय मेल मेंबर्स ऑफ द सिख कम्युनिटी ऑल्सो ना, तो टारगेट्स भी कौन बनेंगे, टारगेट्स भी ऑफकोर्स सॉफ्ट टारगेट्स भी वही होंगे। समझ आया। तो फाइनली क्या हो गया, पूरी की पूरी कंट्री में बहुत लार्ज स्केल पे किलिंग हुई, और फाइनली क्या हुआ, बहुत सारी सिख फैमिली ने अपने मेल मेंबर्स को लूज कर दिया। और उस टाइम पे हालांकि आज भी फैमिली मेंबर का लॉस दैट इज अ ड्रास्टिक लॉस, बहुत खराब लॉस होता है, बट इवन देन उस टाइम पे मेल मेंबर्स का लॉस, जहां पूरी की पूरी फैमिली की इकोनॉमी किसी मेल मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ आया। उस टाइम पे जानबूझकर टारगेट्स किसको बनाया जा रहा था, देवर द मेल मेंबर्स ओनली। तो ये क्या हो गया, बहुत सारी फैमिलीज ने अपने मेल मेंबर्स को खो दिया, और ये क्या था, हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस था। What hurt the Sikh most was that the government took a long time in restoring normality, and that the perpetrators of the violence were not effectively punished. और देखो और सारी चीजें तो लोग टॉलरेट कर भी लेते, that was not any that kind of things कि अगर लोगों को लगता ना कि गवर्नमेंट उनके साथ है तो लोग कहीं ना कहीं चीजों को टॉलरेट भी कर लेते, क्योंकि उनको क्या पता होता कि भाई हम लोगों ने हरमिंदर साहिब मतलब गोल्डन टेम्पल में एक टाइप से गलत काम किया है जो नहीं होना चाहिए था। रिलीजियस प्लेस को हमने क्या बना दिया, मिलिट्री का प्लेस बना दिया, वॉर का प्लेस बना दिया, वायलेंस का प्लेस बना दिया। बट इवन देन देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, सिखों को मारा जा रहा है। राइट। अब लेकिन गवर्नमेंट जब बनेगी, इफ वी हैव सेड दैट यस इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो क्या हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, इजंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री? अगर सिख इतने लार्ज स्केल पे मारे जा रहे हैं तो was it not the responsibility of the government to check what is happening in the country in reality? बट प्रॉब्लम यहीं से राइज हुई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट ना कुछ कर ही नहीं रही है, गवर्नमेंट कुछ बोल ही नहीं रही है, वो नॉर्मल सिचुएशन, और गवर्नमेंट ने बहुत टाइम ले लिया सिचुएशन को नॉर्मल करने में। और सबसे बड़ा ट्रस्ट को लॉस कब पहुंचा, जब उन लोगों ने देखा, सिख पीपल ने, कि उन लोगों को पनिश किया ही नहीं जा रहा है इफेक्टिवली, जिन लोगों ने डायरेक्टली लोगों को मारा है। सो इसकी वजह से क्या होना शुरू हो गया, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स और ज्यादा हर्ट होना शुरू हो गए। राइट।
और फाइनली देखो कब पता चलता है, 20 years later, speaking in parliament in 2005, Prime Minister Manmohan Singh expressed regret over these killings and apologized to the nation for the anti-Sikh violence. और देखो फिर क्या हुआ, अब जो प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के बने मनमोहन सिंह 2005 में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने रिग्रेट फील किया कि जो इतनी लार्ज स्केल पे मास किलिंग हुई ना, वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. हम लोगों ने इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए क्योंकि वो भी कांग्रेस के मेंबर है, राइट. और देखो कहीं ना कहीं ऐसा हो क्यों रहा है, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द रीजन? क्योंकि इंदिरा गांधी वॉज द मदर ऑफ राजीव गांधी ना, तो ही विल बी नॉट रिप्रेसिंग द थिंग्स इन दैट मैनर, क्योंकि उन्होंने भी फाइनली अपनी मदर को लोस्ट कर दिया, राइट. तो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था सिख कम्युनिटी को कि वो भी अपनी मदर की असैसिनेशन का रिवेंज ले रहे हैं. और जब कोई पर्सन इतनी बड़ी अथॉरिटी पर बैठ जाता है, दीज थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन, राइट. और फाइनली 2005 में मिस्टर मनमोहन सिंह ने इन चीजों को एक्सप्रेस भी किया दैट यस, मतलब रिग्रेट भी फील किया इतनी लार्ज स्केल पर जो मास किलिंग हुई, और अपोलोजाइज भी किया जो पूरी की पूरी कंट्री में वायलेंस चली एंटी सिख के रिगार्डिंग, राइट. तो इट मीन्स क्या हो रहा था, कंट्री में कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन जो रिलीजियस, जो हम चाह रहे थे ना कि हमारी कंट्री में रिलीजन के बेसिस पे हार्मनी होनी चाहिए, वो दोबारा से उसका लॉस हुआ है, दोबारा से डिस्ट्रक्शन हुआ है हमारी कंट्री में, राइट. सो दिस वाज द थिंग, दिस वाज द सिनेरियो, दिस वाज द वॉयलेंटिक एस्पेक्ट ऑफ पंजाब स्पेशली. व्हाट वर द रीजंस, हाउ डिड द वॉयलेंस टेक प्लेस, एंड व्हाट वाज द सिचुएशन आफ्टर दैट, राइट. सो दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड टुडे. अब यहाँ पे क्या मेंशन है, देखो यहाँ पे you are able to see picture of Indira Gandhi, right? Assassination. Getting my point? The blood is flowing na. So this is the picture of assassination. A women looking at the wall painting depicting Indira Gandhi's assassination. अब ये किसकी तरफ देख रही हैं? They are watching towards the picture image that is of Indira Gandhi. और वो क्या, उनका assassination हो गया. Fine. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. Here we will be able to understand कि situation क्या हो रही है कंट्री की. यहां पर अब देखो, दिस इज द रिपोर्ट जस्टिस नानावती कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट 2005. अब इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स थी, इस रिपोर्ट में क्या फाइंड आउट किया गया. अब देखो, देयर इज ऑल्सो एविडेंस टू शो दैट ऑन 31st of October 84 either meetings were held or persons who could organize attacks were contacted. मतलब देखो, ये कहीं ना कहीं हार्श रियलिटी शो करी है हमारी कंट्री की. और ये रिपोर्ट्स क्या शो कर रही हैं, ये रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं कि 31st of October को हुआ क्या था. कि पहले तो मीटिंग या तो क्या हुआ था, मीटिंग बुलाई थी उन पर्सन्स की, राइट, हु कुड ऑर्गेनाइज अटैक्स. किन की मीटिंग, जो अटैक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. एंड वर गिवन इंस्ट्रक्शन टू किल सिख्स, राइट. और क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि सिख लोगों को कैसे मारना है. एंड लूट देयर हाउसेज एंड शॉप्स, उनके घरों को और उनकी दुकानों को कैसे लूटना है. ये चीजें शो कर, ये मतलब एविडेंस है, देयर इज आल्सो एविडेंस, प्रूफ है उन सारी चीजों के जो शो करते हैं कि यस, जिस दिन असैसिनेशन हुआ ना, उस दिन मीटिंग्स भी हुई थी, उन लोगों को ऑर्गेनाइज भी किया गया था जिनको अटैक करने थे, उनको कॉन्टेक्ट किया जिन्होंने कहां पर अटैक करने थे, लोगों के हाउसेज को लूटना था, शॉप्स को लूटना था. दीज अटैक्स वर मेड बाय अस इन अ सिस्टमैटिक मैनर. और ये सारे के सारे अटैक कैसे, एक सिस्टमैटिक मैनर में, ऐसे नहीं कि जैसे मन किया वैसे अटैक्स हो गए, नो, एक सिस्टमैटिक मैनर में चीजें चली हैं. एंड विदाउट मच फियर ऑफ पुलिस. और सबसे बड़ी बात, उन लोगों के माइंड में जो अटैक कर रहे हैं, पुलिस का कोई फियर ही नहीं है. ऑलमोस्ट सजेस्टिंग दैट दे वर अश्योर्ड दैट दे वुड नॉट बी हार्म्ड व्हाइल कमिटिंग दोज एक्ट्स और इवन आफ्टर. और ऐसा इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, इस कमीशन की रिपोर्ट की, इंक्वायरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फील हो रहा है कि वो जो लोग अटैक कर रहे हैं, वो जो लोग लूट रहे हैं शॉप्स को, हाउसेस को, दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फियर इन देयर माइंड्स. उन लोगों को ये नहीं लग रहा कि अगर सिचुएशन बाद में कहीं इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन लोगों को कहीं ना कहीं पनिशमेंट दी जाएगी. दे आर नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स. तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या शो कर रही हैं, दीज थिंग्स आर शोइंग अस कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ऐसी कंसेंट इंक्लूड थी जो अटैक्स करवा रही थी. समझ आया, ये चीजें वो आपको शो कर रही हैं. गेटिंग माई पॉइंट. मतलब इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, दैट गवर्नमेंट वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दीज काइंड ऑफ वॉयलेंटिक एस्पेक्ट्स which were happening in our country in 84, right? और फाइनली उन्हीं के अगेंस्ट में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया. फिर तो जो एक टाइप से जो कहीं ना कहीं ऐसे छुप के वायलेंस हो रही थी ना, दैट केम इनटू ओपन ओनली, और वायलेंस होना शुरू हो गई पूरी की पूरी कंट्री में. गवर्नमेंट ने इसको रिस्टोर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, जिसने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बहुत लार्ज स्केल पे हर्ट करना शुरू कर दिया.
So this was the situation of the country. I hope till here everything is completely clear to all of you. You are able to understand the resentment in the feelings, resentment in the minds of Sikh people, in the minds of the people of the Punjab. You are able to understand how did the movement start. After that, you have also understood that in which manner they were converted from moderate to extremist. We have also understood the situation, right? How did the violence took place? We have understood Operation Blue Star. After that, assassination of Indira Gandhi, and what was the scenario of the government regarding all these things. Matlab, how the government was trying to solve all these problems. All these things we have discussed today, and I think all these points are completely clear to all of you. Right? Chapter is interesting and you are able to understand कि कैसे कैसे country का scenario change हो जाता है. Right? But if you are having doubts, you can ask your doubts in comment section. In next video we will discuss that अब government क्या करेगी. राइट क्योंकि लोंगोवाल एग्रीमेंट आप लोगों ने जस्ट पढ़ा है, लेकिन अब क्या कैसे होंगी सारी की सारी चीजें, कैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेगी टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट यस chapter is beneficial for you, video is beneficial for you, and the points are becoming clear in your mind, so please like the video and subscribe the channel as well. We will meet in next video. Till then, keep learning, keep enjoying and stay connected definitely. Thank you. Thanks a lot.